Hello 8th standard. In our civics, for lesson number 1 I uploaded with 3 videos, and this will be my 4th video in which we will continue our first lesson of civics. Now if I talk about my first lesson, so we were somewhere discussing about the Indian Constitution key features. I already explained about the way constitution work and the way constitution was drafted. Okay, but later on few points were added in constitution which we have to discuss, that is key features of Indian Constitution. Now federalism, this refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the central level. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in the class 6th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about central government. See, federalism matlab it is related to types of governments. We can write here so that we can get idea by this word itself, or we can write various types of government, various types of governments working together, right? And they only have one focus only, that is they have to do with more डेवलपमेंट ओनली इन द कंट्री. उनका यही एम होता है. आइदर यू टॉक अबाउट पंचायती राज, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. ओके, नाउ हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट 3 टायर. ओके, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टायर्स, दैट इज पंचायती राज, उससे ऊपर स्टेट लेवल एंड उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, Panchayati Raj is already done. Actually in this book we are more going to focus on working of central government. Vast number of communities in India meant that the system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that the decision could be made for that particular area. See, that is natural ना. अगर say like suppose अगर हम बात करें हमारे स्कूल की, अगर हम बात करें, if I talk about school system, then in school we have management, right? But अगर मैं ये बोलूँ कि मैनेजमेंट इज़ पासिंग लॉ, मैनेजमेंट इज़ पासिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मैनेजमेंट अलोन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, राइट? मैनेजमेंट वो लॉ जो है वो स्टूडेंट को डायरेक्टली पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है और स्टूडेंट्स के लिए हर एक क्लास में लीडर बना दिया गया है, दैट इज़ क्लास टीचर. ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन दिल्ली में बैठे अपने आइडियाज़ और अपने लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे होल इंडिया पर, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अलोन सेंट्रल गवर्नमेंट टू वर्क. सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट है. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट जो है मतलब देयर आर 28 स्टेट्स, देन 28 स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट बना दिए गए हैं. लाइक इन स्कूल वी हैव सो मैनी डिफरेंट क्लासेस, एंड फॉर ऑल डिफरेंट क्लासेस वी हैव डिफरेंट टीचर्स. ओके, देन while each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. The Constitution contains list that details the issues at each tier of government can make laws on. Okay, see, हमारे इंडिया में in a democratic country we have 3 tiers as we discussed, that is Panchayati Raj,
right? We have three tiers in our system. Yes, we have three tiers in our system. That is, one is Panchayati Raj, right? And then state government, then central government. But all these जो three tiers हैं, all these three tiers are having certain rules and regulations made by their own. Okay, see, मैक्सिमम रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर है कि वो सर्टेन रूल्स बना सके, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पंचायती राज के हाथ में भी पावर है कि वो भी सर्टेन रूल्स बना सके. बट येस, दे ऑल हैव टू वर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. पंचायती राज कम्स अंडर state government and state government comes under central government. We have three list actually, that is union list, then we have concurrent list, state list. Okay, हमारे पास actually three list हैं, and then we have concurrent list. Okay, ये जो तीन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट में वो लॉज मेंशन किए गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं. स्टेट लिस्ट में वो लॉज मेंशन किए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं. और कॉन्करेंट लिस्ट में वो लॉज मेंशन किए गए हैं जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाए हैं. अंडरस्टूड? ओके, तो इस तरह मतलब सी, स्टेट गवर्नमेंट जो अपने लॉज बनाएगी, मतलब उसके हाथ में जितनी पावर होगी वो अपने लॉज बनाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू इन योर क्लास टीचर. ओके, अब क्लास टीचर के हाथ में पावर है कि दे कैन अपॉइंट एनी स्टूडेंट एज अ मॉनिटर, राइट? Now that also it is depend upon teacher only whether they want to go with 1 monitor, 2 monitor or 3 monitor, right? And then class teacher is having power. Now monitor is having power to control the class. Okay, अब वो क्लास कंट्रोल करेंगे. क्लास टीचर उनको पावर देगी कि आप जब भी टीचर नहीं क्लास में होंगे आप क्लास को कंट्रोल करेंगे. नाउ मॉनिटर को ये डिसाइड करना होगा कि उसके हाथ में क्या पावर है. सी, मॉनिटर कैन नॉट बीट स्टूडेंट, बट एटलीस्ट मॉनिटर कैन पॉइंट आउट स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन. मॉनिटर कैन राइट नेम्स ऑन बोर्ड और ऑन पेज. मॉनिटर कैन कंप्लेन अबाउट एनी मिस्चीवियस स्टूडेंट टू द क्लास टीचर और टू द सब्जेक्ट टीचर. यस, तो उसी तरह से कुछ पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और पंचायती राज के हाथ में है. While okay, then in addition the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. So इसमें क्या लिखा है कि गवर्नमेंट को, दैट इज़ अगर मैं ये थ्री गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो थ्री गवर्नमेंट्स में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट करेंगे, दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर गवर्नमेंट मतलब उनके हायर गवर्नमेंट, एंड उसको बोलते हैं ग्रांट मिलना, राइट? ग्रांट. ओके, तो once government get grant for certain project, then they go on with construction work or renovation work or whatever. Okay, so उनको मनी भी प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट अपने एरिया में रखने के लिए. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट मतलब इट इज़ नॉट दैट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अपने हाथों में भी कई सारी पावर्स हैं.
They have so many powers to make rules and regulations for their own state as well. Okay, then they are obviously they have to report for कंस्ट्रक्शन वर्क और कुछ भी है. से लाइक सपोज गुजरात है तो गुजरात में अगर रेलवे है तो रेलवे जो जहाँ पर भी है ऑल ओवर इंडिया में इट इज़ इंक्लूडेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं देगा. ओके, वो रेलवे ही करेगा. वो कोई भी स्टेट में रेलवे होगा लेकिन वो काम रेलवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगे. ओके, हाँ, अगर स्टेट में से लाइक सपोज अभी सूरत में कई सारे ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं तो दैट डिसीजन कैन बी टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट के ओके सूरत इज़ डायमंड सिटी, सूरत में वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इज़ टू मच इन सिटी एंड due to more population there is so much traffic remained on road. So to lessen the traffic they can go on building bridges, over bridges and all, right? तो वो हक स्टेट गवर्नमेंट को है. ओके एवरीवन, देन फर्दर नेक्स्ट parliamentary form of government. The different types of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7 book with the story of Kanta who was standing in the line to vote during an election. The Constitution in India guarantees universal adult franchise, universal adult suffrage for all citizens. When they were making the constitution, the members of the constituent assemblies felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage and that this would help encourage the democratic mindset and break the clutches of the traditional caste classes and gender hierarchies. Okay, अब अगर यहाँ तक बात करें, हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 एक्सपर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. तो उनको पता है किस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज स्ट्रगलिंग इन कॉलोनियल रूल. ओके, तो उनको एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था जहाँ पर लोग अपना लीडर खुद चुने और वो लीडर लोगों के लिए अच्छे से काम करे. और उसके लिए जो रूल्स बनाए गए, लाइक आपने 7th स्टैंडर्ड में जो कांता की स्टोरी पढ़ी है कि इलेक्शन में वोट करने गई कांता लाइन में खड़ी थी और उस लाइन में हर एक प्रोफेशन का बंदा भी लाइन में टर्न वाइज टर्न खड़ा था. ओके, तो वोट करने गए और वहाँ पर वोट किया और फिर एक मिनिस्टर बना और वो मिनिस्टर फाइनली अपना वर्क शुरू करेगा. अंडरस्टूड. एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो अकेले डिसीजन नहीं लेते. वो लोग एक साथ बैठते हैं, बैठकर अपने टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं बाय शेयरिंग ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ देयर डिस्कशन. अंडरस्टूड. तो नो वन इज़ इम्प्लीमेंटिंग इंडिविजुअल डिसीजन, भले वो कोई भी हो लीडर पॉलिटिक्स में. हर एक को लाइक दे हैव वन असेंबली हॉल, उनके पास एक मीटिंग हॉल है जहाँ पर ये सब मिनिस्टर्स इकट्ठे होकर अलग अलग इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं और देन फाइनली दे गो ऑन टेकिंग वन डिसीजन. ओके, देन दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective to his or her social background, can also contest in election. इलेक्शन के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है. आप फॉर्म फिल कीजिए. यस, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. आप फॉर्म फिल कीजिए और आप वंस योर फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड देन यू कैन गो with certain public speeches and all, so that you can come in public and public should know you very well, and then finally you can be elected as a minister. Okay, these representatives are accountable to the people. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं
वो हमेशा लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि लोग, सी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लोग उनसे कभी भी पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिए आपने क्या किया, या फिर अगर हम आपको जिताएंगे तो आप हमारी प्रोग्रेस के लिए क्या स्टेप्स ले लोगे. You will read more about why representation is crucial in democratic functioning in Unit 2 of this book. See, इलेक्शन के लिए जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वो कैंडिडेट अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना पड़ता है. तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस बुक इटसेल्फ. ओके एवरीवन, नाउ let me complete the third one also, separations of power. According to the constitution, there are three organs of government. There are the legislature and executive and judiciary. The legislature refers to our elected representatives. Executive is a small group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you all will read in unit of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of the power by any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organ and government, and this ensures the balance of power between all three. See, सिंपल है, इन आवर इंडिया वी हैव ऑर्गन्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टायर्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में वेरी फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर. ओके, सेकेंड इज़ योर सेकेंड वन इज़ executive. Okay, and the third one is judiciary. Okay, that is legislature, executive and judiciary. See, ये सब organs हैं गवर्नमेंट के, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एंड तीसरे नंबर पर. अब लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है. इट इंक्लूड्स मिनिस्टर्स. ओके, ये मिनिस्टर्स को इंक्लूड करता है जो लॉज बनाता है. अंडरस्टूड. अब मिनिस्टर्स मतलब वो लोग जिनको पब्लिक चूज़ करती है. ओके, जिनको पब्लिक चूज़ करती है और जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर. अंडरस्टूड. नाउ लॉ बनाना मतलब समथिंग प्लान आउट करना. अब प्लान आउट किया हुआ जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना. उसके लिए गवर्नमेंट में कुछ लोग अपॉइंटेड होते हैं और वो लोग एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. और आई कैन हेयर स्टिल राइट पीपल those who implement laws. ओके, वो लोग जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. पीपल भी कौन से पीपल? सिलेक्टिव पीपल. इट इज़ नॉट दैट एनी वन, नॉट कॉमन पब्लिक. सिलेक्टिव पीपल, दोज हु इम्प्लीमेंट लॉज. ओके, एंड देन जुडिशियरी का रोल सबसे अलग है. जुडिशियरी लॉज को मेक नहीं करता, जुडिशियली इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन जुडिशियरी जो है वो जज करता है. और आई कैन टेल जुडिशियरी जो है वो सुपरवाइज करता है. किसको? ये सब लॉज को. अंडरस्टूड. मिनिस्टर्स ने कौन से लॉज बनाए, वो लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं, वो सब जो है वो सुपरवाइज होता है बाय जुडिशियरी. अंडरस्टूड. अब ये जो तीन चीज़ें हैं, नाउ सी एवरी वन आर हैविंग डिफरेंट वर्क.
but these all three people are connected with one another. ये सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ओके क्योंकि लॉस नहीं बनेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे, और अगर ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे। एंड अगर इन लोगों ने अच्छे से अपना काम सुपरवाइज़ नहीं किया तो इन लोगों को तो पता चलेगा ना कि हमने लॉ कैसे बनाया था और एग्जीक्यूटिव ने वो लॉ को कैसे लोगों में इम्प्लीमेंट किया। अंडरस्टूड? सो वेदर दे आर डूइंग वर्क प्रॉपरली और नो, दैट विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय मिनिस्टर्स, राइट। तो इस तरह से ये सब वर्किंग इन लोगों का चलता है। अंडरस्टूड? इस तरह से बैलेंस रहता है सब काम। पावर्स भी सेपरेट कर दिए जाते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ लिंक अप रहते हैं। ओके, we will continue with our next two topics in my next video. Take care, study well, bye bye.